یہ تب کی بات ہے جب ہم راولپنڈی میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک خالی پلاٹ تھا جہاں پر ہر ہم شام کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس خالی پلاٹ کے عین سامنے فائزہ آنٹی کا گھر تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دن پہلے یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ گھر میں ابھی تک ہم صرف دو میاں بیوی ہی دیکھتے تھے۔ میاں جی تو صبح صبح کام کو چلے جاتے اور کہیں رات گئے ہی واپس آتے تھے۔ پیچھے گھر میں ایک خاتون اکیلی رہ جاتی تھی اور جس کا مشغلہ شاید لڑائی تھا۔ ان کے باقی فیملی ممبر کہاں رہتے تھے؟ فیملی میں لوگ اور بھی تھے کہ نہیں، کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ نہ تو وہ کسی کے گھر جانا پسند کرتی اور نہ ہی ان کے ڈر سے کوئی ان کے گھر جاتا۔ بیٹنگ کرتے ہوئے اگر ذرا بھی زور سے شاٹ لگتی تو بال سیدھا آنٹی کے گھر جا کر گرتا، جو وہ نہ صرف واپس کرتی بلکہ الٹا باہر نکل کر ہمیں خوب سناتی۔ ہم لوگ بہتری کی کوشش کرتے مگر اس کے باوجود ہر دوسری شام ہمارا ایک آدھ بال ان کے گھر ضرور جایا کرتا تھا، جو ظاہر ہے کبھی واپس نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح ہم کئی بال خرید کر عاجز آ چکے تھے۔ آخر تانگ آ کر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی بھی ہٹ سے بال آنٹی کے گھر جائے گی وہی نیا بال خریدے گا۔ اس فیصلے کے بعد ہم لوگ کافی محتاط ہو گئے تھے۔ پھر کبھی کبھی بندہ جوش میں آ کر ہٹ لگا ہی دیتا ہے، خاص کر جب لوز بال ملے تو۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ایسا ہی ایک دن میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں بیٹنگ کر رہا تھا، اب پتہ نہیں دوست نے جان بوجھ کر یا کسی اور وجہ سے مسلسل لوز بالیں پھینک لی۔ ایک دو بار تو میں نے لحاظ کیا، پھر اس حرامی نے آخری بال کچھ زیادہ ہی لوز پھینکی اور اتنی لوز کہ دیکھ کر میں رہ نہ سکا اور بیٹ گھما دیا۔ رزلٹ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ بال نے زکاند بھری ہوئی ہوا میں اڑتے اڑتے سیدھا آنٹی جی کے گھر جا کر گری۔ شاٹ لگا کر جتنا مزہ آیا تھا اتنی گھر بال دیکھ کر میں تو بے مزہ ہو گیا تھا۔ فیصلے کے مطابق اب مجھے نئی بال لانا تھی اور میری جیب بالکل خالی تھی۔ ادھر دوستوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا میں جلدی سے نیو بال لاؤں کہ گیم شروع ہو، اور ادھر میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ محلے کے کلوتے دکاندار نے بھی ہمارا ادھار بند کیا ہوا تھا اور کسی سے ادھار کیا مانگتا کہ سب کا حال ایک جیسا تھا۔ ادھر سب مجھ سے فی الحال یہی تقاضا کر رہے تھے۔ آخر میں نے سوچا کہ نئی بال تو میں نہیں لانا جا رہا، چلو آنٹی کے گھر جا کر بال مانگتے ہیں، کیا پتہ بال مل ہی جائے۔ ویسے بھی اگر یہاں کھڑا رہا تو یہ لوگ جان کو آ جائیں گے، یہ سوچا اور آنٹی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دوڑتے آنٹی کے گھر کی گھنٹی بجائی۔ دروازہ آنٹی نے ہی کھولا اور حسب عادت کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سخت آواز میں بولی، کیا بات ہے؟ اس کے اس لہجے کی بھونکار سن کر ایک بار تو میری جان ہی نکل گئی۔ پھر میں بھی ہمت کر کے، اس کے سوا کوئی چارہ تو نہیں تھا، بولا، وہ آنٹی بال آئی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے میں نے بڑا ہی مسکین منہ بنا لیا اور نظریں نیچی کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو میری مسکین شکل پر رحم آیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال میں نے محسوس کیا کہ آنٹی جی کچھ ڈھیلی پڑ گئی ہیں، سو میں نے ایک دفعہ پھر سے سارے جہان کی مسکینی اپنے اکلوتے منہ پر طاری کی اور بڑے ہی عاجزانہ لہجے میں دوبارہ درخواست کی کہ پلیز آنٹی آج بال دے دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، اگر میں بال نہ دوں تو؟ میں نے کہا کہ مجھے بال نہیں خریدنی پڑے گی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ پہلی دفعہ میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ وہ دیکھ رہی تھی، ابھی تو مہینہ شروع ہی ہوا تھا اور تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا تمہیں کوئی جیب خرچ نہیں ملتا؟ تو میں نے جلدی سے کہا، وہ تو سارے کا سارا خرچ بھی ہو گیا، بلکہ تھوڑا ادھار بھی چڑھ گیا۔ اس پر وہ تھوڑا حیران ہو کر بولی، خرچ ہو گیا؟ پھر وہ کیسے؟ وہ میری حالت ایکٹنگ دیکھ کر وہ خاصی محفوظ ہو رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اس ٹائم خاصا کنفیوز تھا، سو گھبراہٹ میں بولا، وہ یہ سن کر قدرے سے غصے سے بولی، جلدی بولو کیسے خرچ ہوئے پیسے؟ ان کا ڈر تو پہلے ہی دل میں بیٹھا ہوا تھا، سو میرے منہ سے جلدی میں سچی بات نکل گئی اور میں نے کہہ دیا کہ وہ جیب خرچ سے میں نے اپنی گرل فرینڈ کو سالگرہ کا تحفہ لے کر دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بڑی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، او پھر تو پرابلم ہے۔ پھر کہنے لگی، اوکے انتظار کرو، میں بال لاتی ہوں، اور خود گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بال تھی، جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس نے مجھے بال دینے سے پہلے کہا،
फ़र्ज़ करो अगर मैं तुमको बॉल ना देती तो तुम क्या करते? तो मैंने जवाब दिया, किसी न किसी तरह नया बॉल ख़रीदता और उसके बाद फिर 3-4 दिन तक रोज़ाना आपकी घंटी बजाकर भाग जाता। ये भी हमारी टीम का फ़ैसला था। मेरी बात सुनकर वो दोबारा हैरान हुई और बोली, अच्छा तो जिसको बॉल नहीं मिलती तो वो ये काम करता है। फिर इसको पता नहीं क्या ख़्याल आया, बोली, ओ अच्छा तो ये चक्कर है। उसके साथ ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर मुझे कुछ न कहा और बार मेरे हाथ में पकड़ा दी। जब बॉल लेकर मैं वापस जाने लगा तो वो बोली, सुनो। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, अपने दोस्तों से कह दो कि आइंदा हमारी घंटी ना बजाया करें। मैं बॉल दे दिया करूँगी, पर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि बॉल लेने सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही आओगे। मैंने कहा कि ठीक है आंटी, सिर्फ मैं ही आऊँगा और वहाँ से चला आया। वापस आकर जब मैंने दोस्तों को ये बात बताई तो वो बड़े खुश हुए, पर मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। वो इसलिए कि जब भी बॉल गिरती मुझे ही जाना पड़ता और अमूमन 2-4 सुनाकर ही बॉल मुझे देती थी। रोज़ रोज़ के आने जाने से अब मेरी फ़ायज़ा आंटी के साथ पहले से तो अच्छी हेलो है, फिर कुछ फ्रेंडशिप भी हो गई थी। गाहे बगाहे अब वो बॉल दे देते, मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ लेती थी और मैं उनको सच सच बता देता था। इस तरह कुछ दिन बाद हमारी गपशप थोड़ी और बढ़ गई। कभी कभी वो मुझे कोल्ड ड्रिंक की भी ऑफ़र देती और बाज़ दफ़ा तो मैं खुद भी उनके घर के अंदर जाकर बॉल लेकर आता। हाँ, मगर एक बात थी, वो ये कि जिस दिन मैं खेलने ना जाता और बॉल उनके घर चली जाती तो वो मेरे सिवा किसी और को हरगिज़ बॉल ना देती थी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही उनके घर से बॉल ला सकता था। एक दिन की बात है कि जब मैं उनके घर बॉल लेने गया तो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने उनके चेहरे का रंग देखकर पूछा कि आंटी खैर तो है? तो वो घबराहट में बोली, अम्मी की तबीयत अचानक ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। इन दोनों उनकी मम्मा उनसे मिलने आई हुई थी। तो मैंने कहा, कोई दवाई वगैरह नहीं दी? तो वो कहने लगी, दवाई तो ख़त्म होने की वजह से उनकी ये हालत हो रही है। फिर बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे उनकी दवाई ला कर दे सकते हो। तो मैंने कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप हुक्म करें कि कौन सी दवाई लानी है, मैं मिनटों में ला देता हूँ। तो वो कहने लगी, ये बहुत अर्जेंट मसला है, प्लीज़ तुम 10-15 मिनट में दवाई ला सकते हो, क्योंकि उसके बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ जितना हो सके मुझे वो दवाई जल्दी ला दो। और फिर मुझे जल्दी से एक कागज़ पर दवाई का नाम लिख दिया और एक बार फिर ताकीद की कि जितना जल्दी हो सके ये दवाई मुझ तक पहुंचाओ कि टाइम बहुत कम है। मैंने उनके हाथ से वो कागज़ लिया। बाल मैं पहले ही सेकंड से ला चुका था, सो मैंने जल्दी से कागज़ पकड़ और वहाँ से दौड़ लगा दी। रास्ते में ग्राउंड पड़ता था, वहाँ बाल अपने दोस्त को दी और ये कहकर दौड़ लगा दी कि मैं आंटी के लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। और फिर वहाँ से भाग मेडिकल स्टोर पर जा पहुँचा और उनको दवा का कागज़ दिखाया तो पता चला कि ये उनके पास वो दवाई ख़त्म हो चुकी है। दूसरा स्टोर वहाँ से थोड़ा दूर था, तो अब मैं और भी तेज़ भागकर उस स्टोर पर खुशकिस्मती से वो दवाई उनके पास मौजूद थी। चुनांचे मैंने जल्दी दवाई ली और फिर वहाँ से फुल स्पीड से भागकर आंटी के घर पहुँच गया। वो दरवाजे पर खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने दवाई उनको पकड़ाई तो उस वक़्त मेरी सांस दुगनी तरह चल रही थी। सख्त गर्मी लगी हुई थी और तेज़ सांसों के साथ साथ मैं पसीने में शराबूर था। आंटी ने मुझसे दवाई ली और फ़ौरन अंदर अपनी अम्मी के कमरे में चली गई और जाते जाते मुझसे कह गई कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ जाऊं और पसीना सुखा कर ही जाऊं। अब मैं ड्राइंग रूम में गया और पंखा फुल स्पीड पर करके सोफे पर बैठ गया। फिर गर्मी फिर भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ख़ासकर मेरा अंडरवेयर तो आग का गोला बना हुआ था। मैंने पहले तो अपनी शर्ट उतारी और सोफे पर फैंक के नीचे बैठ गया। इस वक्त जीन्स के नीचे पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था, जिससे मेरा बड़ा तंग हो रहा था। और मैंने ये सोचकर आंटी अपनी अम्मी के साथ बड़ी होंगी पैंट की जिप खोली और बिल्कुल पंखे के नीचे कर दी और कारपेट पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट तक मैं ऐसे ही सांस लेता रहा। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अब मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक सोता रहा और ये भी मालूम नहीं कि फ़ायज़ा आंटी कब कमरे में दाखिल हुई। जब मेरी आंख खुली तो वो ड्राइंग रूम में मौजूद थी और सामने सोफे पर बैठी मेरी ही तरफ देख रही थी।
और जब मेरी नज़र उनकी नज़र से मिली तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता कि आंटी कब से वहाँ बैठी थी, मुझे देख रही थी। फिर मैंने उनको देखकर उठने की कोशिश की तो मुझे उठता देखकर कहने लगी, काफ़ी थके हुए लगते हो। और फिर टाइम पर दवाई ला कर देने पर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और बोली, अगर तुम भाग दौड़ ना करते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर मेज़ की तरफ इशारा करके बोली, सामने मेज़ पर ठंडे शरबत का जग और गिलास रखा है, उठकर पी लो। और फिर बड़े ही मायने के लहजे में बोली, लगता है कि तुम्हें बहुत गर्मी लगती है। जैसे ही आंटी ने ये बात की मेरी नज़र अपनी पैंट की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त मेरे घुटनों तक आई हुई थी और मैंने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था और ये काफ़ी छोटा था। और उनकी नज़रों को अपनी तरफ पाकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैंने फ़ौरन ही अपनी पैंट ऊपर करने की कोशिश की। और इससे पहले कि मैं अपनी पैंट ऊपर करता वो बोली, ना ना ऐसा मत करो। मैंने ये बात सुन ली और कही कि तुम फ़ौरन ही अपनी पैंट दुरुस्त करनी शुरू कर दो। फिर बोली, मुझे पता है कि तुम काफ़ी तेज़ भाग कर आए थे और इससे पहले कि तुमने 2-3 घंटे गेम भी खेली थी। सो ओके यार, ऐसा हो जाता है, मैंने डरने की कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से उठो और ठंडा शरबत पी लो। उनकी बात सुनकर मेरी कुछ जान में जान आई और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आपकी अम्मी कैसी है। कहने लगी कि ठीक है और दवाई खाकर सो गई हैं। अब मैंने दोबारा अपनी पैंट पहनने के लिए हाथ जैसे ही घुटनों तक लाने की कोशिश की तो वो खुद ही उठते हुए बोली, बैठे रहो, शरबत मैं ला देती हूँ। फिर वो उठी और जग से शरबत का गिलास भर कर लाई और वो शरबत का गिलास तो मेरे हाथ में पकड़ा रही थी पर उनकी नज़रें अभी भी मेरी तरफ थी। ये महसूस करते ही मैंने एक दफ़ा फिर अपनी पैंट ऊपर करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, अभी रहने दो कि तुम्हारा पसीना भी खुश्क नहीं हुआ और तुम्हारे कपड़े अभी तक वैसे के वैसे भीगे हुए हैं। ज़रा पसीना सूख जाए तो बेशक पहन लेना। फिर मेरी तरफ देकर बोली, ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने कहा, वो जी वो मैं तो डर गया था। वो मुस्कुराकर बोली, कमाल है, तुम डर तो नहीं रहे तो फिर तुम्हारा रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? वो बात तो मुझसे कर रही थी पर उनकी नज़रें मेरी। आखिर मैंने सच्ची बात करने का फ़ैसला कर लिया। बोला, आंटी मुझे आपसे डर लगता है। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम मुझसे डरते हो क्यों? क्या कोई मैं जिन्न हूँ जो मुझसे डर रहे हो? फिर खुद ही हंस कर बोली, तुम मुझसे ना डरो, हम दोस्त हैं यार। हाँ मैं बहुत सख्त हूँ और कुछ ब्लड प्रेशर की मरीज़ा भी हूँ पर मेरी सख्ती दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं और ना ही मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई सख्त बात की है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, टेक इट इजी यार। बेशक इस वक्त उम्र में कम था पर इतना भी कम नहीं कि आंटी के इशारे को ना समझ सकता। अब मैंने उनके हाथ से शरबत का गिलास लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और शरबत पीते हुए उनसे बातें करने लगा। वो अब भी चोर नज़रों से उधर ही देख रही थी और फिर मैंने देखा कि वो अब अंडरवेयर की तरफ देखने के साथ साथ वो बार बार अपनी ज़ुबान खुश्क होते हुए होंठों पर फेर रही थी और उनका रंग भी तो थोड़ा लाल हो रहा था। उनकी ये हालत देखते हुए अचानक मैंने अपने अंडरवेयर से क्लियर सिग्नल महसूस होना शुरू हो गए और अब मैंने थोड़ा अलग थोड़ा मुख्तलिफ सोचने लगा था और उनकी हालत देखकर मस्त होने लगा। और फिर मैंने मैडम को थोड़ा तंग करने का फ़ैसला किया और ये सोचकर मैं जो बैठकर उनसे बातें कर रहा था, अब मैंने अपनी कोहनियाँ कालीन पर टिका दी और नीम दराज होकर उनसे बातें करने लगा। और मैंने जानबूझकर ऐसे ज़ाविये से कि मेरा सामान उनके सामने आ गया, जैसे वो बार बार चोर नज़रों से देखे जा रही थी। मैं उनको थोड़ा और तरसाना चाहता था। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी आप कितनी भाई बहन हो? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो हम 5 बहन भाई हैं और सर झुका लिया। फिर कुछ देर तक कमरे में बड़ी ही गंभीर सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफ़ान आने से पहले छाया करती है। यह खामोशी हम दोनों के बीच ख़ास सिग्नल दे रही थी, जैसे मैं समझ रही थी और मैं भी। दोनों अनजान बैठे। वो बदस्तूर निगाह बेंच की गर्दन झुकाकर कलीन पर अपने पाँव का अंगूठा रगड़ रही थी। अचानक मुझे एक आइडिया सूझा। मैंने खामखा ही कह दिया कि लगता है आप भी सख्त गर्मी लग रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर उठाकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोली, गर्मी लगनी ही है
और क्या सर्दी लगेगी। फिर मैंने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया और कलीन से ये कहता हुआ उठ गया कि आपको भी एक गिलास ठंडे शरबत की सख्त ज़रूरत है। जब मैंने शरबत उठाया तो पैंट मेरे पाँव में आ गई और फिर जग से शरबत का गिलास भरा और गिलास आंटी के पास ले गया और फिर एक ख्याल के तहत मैं उनके सामने कलीन पर लेट गया और दो महीनी लहजे में पूछा, आंटी जी कुछ गर्मी कम हुई। वो भी मेरी बात की तह तक पहुंच गई और बोली नहीं बल्कि कुछ और बढ़ गई और मुस्कुरा दी। अब सूरत हाल ये थी कि मेरे सामने सोफे पर दोनों टांगें ऊपर करके बैठी थी और मैं उनके बिल्कुल सामने कारपेट पर लेटा हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा खिसक सोफे के करीब आया और अपनी एक टांग उठाकर उनके पास सोफे पर रख दी और फिर पूछा, एक गिलास और डाल लूँ। ये कहते हुए खासकर डाल लूँ। फिर थोड़ा ज़्यादा और ज़ोर दिया। उसके साथ ही मैंने अपनी एक टांग सोफे पर रख दी। इधर वो भी मेरी बात का मतलब समझकर बोली, इस छोटे से गिलास से भला कहाँ प्यास बुझती है, पूरा जग पिलाओ तो बात बनेगी। और साथ ही मुस्कुरा दी और अब मैंने अपना सोफे पर धरा पाँव धीरे धीरे से सरकाना शुरू कर दिया। ये देखकर उन्होंने भी फ़ौरन अपनी टांगें सोफे से नीचे लटका दी और अपनी एक टांग मेरी थाई पर रख दी। मुझे इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था कि बज़ाहिर तो हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, पर अंदर खाते हम एक दूसरे के साथ सख्त छेड़छाड़ कर रहे थे। और मेरा ख्याल है अब वो भी मेरी तरह इस सूरत हाल का पूरी तरह लुत्फ़ ले रही थी, क्योंकि अब उनका चेहरा गुलनार तो पहले की तरह ही था, पर अब वो नीचे नहीं देख रही थी बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे मैंने अपना पाँव नीचे करके मेरी थाई पर रखा था, मैंने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया। अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि जोश के मारे मेरा बुरा हाल था और मैंने लम्हा ब लम्हा कंट्रोल खो रहा था और मेरे हवास मेरे काबू से बाहर हो रहे थे। और उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों को में पकड़ लिया था और फिर उनके एक गाल को चूम लिया। अब मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही। वो कह रही थी कि क्या कर रहे हो, तो मैंने जवाब दिया, आपका गाल चूम रहा हूँ। तो वो कहने लगी, ये ठीक नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी। तो मैंने कहा, गर्लफ्रेंड को तो कुछ पता चलेगा तो वो कुछ सोचेगी ना। तो वो सरगोशी की आवाज़ से मैं बोली, फिर भी ये ठीक नहीं। मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुम से बड़ी भी हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करो और मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो मैंने सरीहन झूठ बोलते हुए जवाब दिया कि आंटी वो मुझे ये सब नहीं करने देती। वो थोड़ा हैरान होकर कहने लगी, अच्छा पर वो क्यों। तो मैंने एक और झूठ बोलते हुए कहा, क्या वो कहती है कि ये सब शादी के बाद करेंगे। तो वह कहने लगी, बात तो वो ठीक कह रही है ना। तो मैंने जवाब दिया कि ठीक तो कह रही है, पर मुझसे अब रहा नहीं जाता, आप मना ना करें। तो आंटी बोली, एक शर्त पर। मैं जल्दी से बोला, जी बताएं।